Hello students, I am back again with my video lecture on the topic that is Indian economy on the eve of independence. Previous lecture में हमने introduction से start करा था, हमने particularly foreign sector cover कर लिया, we have covered the agriculture sector, we have covered the industrial sector, हमने ये सारे sectors cover कर लिए. आज वाले lectures में mostly we will be focusing on occupational structure and we will be also focusing on demographic profile. Okay, means at the eve of independence के time पे what was the demographic profile of the country, and we will be focusing on the demographic profile. चलो lecture start करने से पहले I would like you to please hit the subscribe button for more updates on the Indian economics and the further chapters of accountancy and business studies. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, do share with your friends, do share with your other colleagues in that particular case, and do subscribe the channel and increase the support. So let us get started with the today's lecture. Now, today we will first focus on the occupational structure. Now, occupational structure क्या होता है? जैसे आज मेरा occupation है that I am teaching. I am a teacher. Now, occupational structure simply means, I am just showing on your slideshow, occupational structure simply means distribution of labor force in three main sectors. अपने 9-10 से पढ़े बेटा. ये तीन main sectors कौन कौन से हैं? एक होता है agriculture, एक होती है service और एक होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सो ये तीन सेक्टर्स हैं. कौन कौन से? एग्रीकल्चर, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो. तो यहाँ पे अपन ये फोकस कर रहे हैं कि आपकी जो लेबर फोर्स है, नाउ हियर टर्म कम्स लेबर फोर्स. लेबर फोर्स को हम तीन मेन सेक्टर्स में जो डिवीजन होगा, दैट विल शो द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन. मतलब इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे जो चल रहा था वो चलेगा ऑन द बेसिस कि आपकी जो लेबर फोर्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इन तीन सेक्टर्स में. नाउ वी विल बी सीइंग आवर लेबर फोर्स कैसे इन तीन सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. अपन पहले फोकस करते हैं. These are approximate percentage. Don't understand this as the exact percentage. So at the time of independence, I have shown you by the pie chart. मैंने pie chart से show करा है यहाँ पे. जो agriculture sector है वहाँ पे 75% of your population was engaged. Means 75% of your labor force was engaged. Why? Because India को शुरुआत से ही बोला जाता है agricultural economy. We are considered as the agriculture economy only for many years, and still आप अभी देख रहे हैं we are also facing the particularly sessions going from farmers, agitation going from farmers. अभी आप farmers war revolts देख रहे हैं recently. Now India is already considered as an agrarian economy. Now, coming to service, that has been shown by green here, 15% is the overall occupational structure at that point. And coming to manufacturing, there was only 10%. अब आपके इस दिमाग में आएगा मैन्युफैक्चरिंग में इतने कम परसेंटेज क्यों? बेटा इंडस्ट्रीज को चाहिए इन्वेस्टमेंट. बिना इंडस्ट्री अगर आप सोच रहे हो आज फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट. एग्रीकल्चर इज ऑल्सो रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट. सर्विस में लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रहता है. जैसे आज अगर टेक फॉर द एग्जांपल आप सर्विस में एम्प्लॉयड हो तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वहां पे दैट वुड बी अ केस. बट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, जो आपके पर्टिकुलरली इंडियन पर्टिकुलरली एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ओनली देयर वाज टिस्को, जिसका आपको नाम भी याद होना चाहिए. That was only TISCO, which came in 1907. Tata Iron and Steel Company. TISCO, it was given by Jamshedji Tata. So उस टाइम पे बहुत कम पर्सन्स थे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में. एंड इवन द गवर्नमेंट इज वाज नॉट इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलरली पब्लिक अपने इंडस्ट्रीज में. रीजन क्या था? अगेन लो इन्वेस्टमेंट्स, कोई टैक्सेबल अथॉरिटी नहीं, वहां पे आपके इन्वेस्टमेंट्स कम मिल रहे थे, गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट्स कम थी, इसीलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट्स भी कम थे. और इसीलिए वहां पे ये जो ऑक्यूपेशन है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम लेबर फोर्स को लेके चल रहा. अब अनबैलेंस ग्रोथ, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ग्रोथ का सिनेरियो आज भी देखो तो आज भी अनबैलेंस ग्रोथ है. इन इंडिया देयर इज आल्सो अनबैलेंस ग्रोथ स्टिल.
So what is the unbalanced growth is decrease in the share of workforce in agriculture sector. आपके कुछ कुछ सेक्टर्स जैसे सपोज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना पॉपुलर ऑक्यूपेशन नहीं था, इसीलिए वहां की वर्कफोर्स ज्यादा किसमें इन्वॉल्व थी, वहां की वर्कफोर्स सर्विस। आज भी देखा जाता है, वी आर सीइंग दैट साउथ इंडियन पर्सन्स आर मोस्टली कमिटेड टुवर्ड्स देयर सर्विस सेक्टर। सो डिक्रीज ऑफ शेयर ऑफ वर्कफोर्स किसके अंदर था बेटा, इट वाज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। फिर आ जाता है इंक्रीज इन शेयर ऑफ वर्कफोर्स दैट वाज इन उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब एंड हरियाणा। सो इन दैट केस आज भी अगर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा आर दी मेजर particular states which are being considered as the agricultural state because वहां पे हर कोई इसमें इन्वॉल्व है, मोस्टली इट इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो आपकी इंडिया में क्या चल रहा है, हियर देयर इज अ अनबैलेंस्ड growth and there are regional variations। रीजनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनल वेरिएशंस? एक रीजन कोई अलग चीज में डेवलप हो रहा है, एक रीजन कोई अलग चीज में डेवलप हो रहा है, एज वेयर इज पर्टिकुलरली वेराइटीज ऑफ पर्टिकुलरली सीजनल पैटर्न्स आर गोइंग ऑन, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग बिजनेसेस भी सेपरेट है। आसाम इज फेमस फॉर योर टी, नागपुर इज फेमस फॉर द ऑरेंजेस, तो रीजनल वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे। ओके, बट यहाँ पे अगर मैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे बात करूं बेटा, सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहाँ पे अच्छा खासा था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इट वाज मिसबैलेंस, इट वाज अनबैलेंस। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट्स में जैसे यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन स्टेट्स में क्या था, एग्रीकल्चर डाउनफॉल पे था। वहीं एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट जो था वहां पे इन द केस ऑफ राजस्थान, उड़ीसा एंड पंजाब, वहां पे एग्रीकल्चर वाज ऑन द अपलिफ्टमेंट साइड। फिर आ जाते हैं अपन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जो मैंने अभी बोला कि इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। नाउ व्हाट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल? आज अगर मैं बोलूं कि मुझे इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल समझनी है तो मुझे वहां की पॉपुलेशन की क्वालिटी समझनी है। मतलब वहाँ की क्वालिटी कैसे, इन केस ऑफ लिटरेसी, इन केस ऑफ हेल्थ, इन केस ऑफ देयर पर्टिकुलरली डेथ रेट, इन केस ऑफ देयर बर्थ रेट। सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में डिस्कस किए जाते हैं ऑफ अ कंट्री। दैट इज पर्टिकुलरली एज आई टोल्ड यू, सपोज बर्थ रेट, कि बर्थ रेट क्या चल रहा है, सेक्स रेशियो क्या चल रहा है, मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स ओवर मेल्स, एंड व्हाट इज दी डेथ रेट गोइंग ऑन, मतलब कितने लोग मर रहे हैं। मे बी अगर ज्यादा लोग मर रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पे पर्टिकुलरली हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट अप टू द मार्क। जैसे अभी अपन ने कोरोना वायरस पेंडेमिक में देखा दैट वी वर फेसिंग मेजर इशू ऑफ डेथ बिकॉज वी वर नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अब आगे बढ़ते हैं, इन दिस केस स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। क्या था आपका स्टेट डेमोग्राफिक प्रोफाइल का? यहाँ पे अगेन आई हैव गिवन अ शॉर्ट फॉर्म टू यू, दैट इज पिल। पिल क्या होती है? गोली। तो ये गोली आपके लिए। फर्स्ट पी इज रिप्रेजेंटिंग पॉवर्टी। यहाँ पे पॉवर्टी मीन्स मोस्ट ऑफ द persons were under below poverty line at the time of eve of independence। eve of independence के टाइम की बात कर रहा हूँ। सेकेंड इज इलिटरेसी। लिटरेसी यहाँ पे क्या हो रही थी, दैट वाज द persons were not very much educated। now what is the meaning of literacy and education is different। लिटरेसी का मतलब है कि आप कोई एक लैंग्वेज रीड एज वेल एज राइट कर पा रहे हो। जैसे मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, आई एम लिटरेट। हिंदी बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, मैं तो एक ही लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश हिंदी इज अ मोस्ट कॉमन। बट एट दैट मोमेंट आप सोचिए कि वहां पे कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन थी जो इलिटरेट थी, मतलब उसे इनको एक लैंग्वेज भी नहीं लिखने और बोलने आ रही है। तो एट दैट मोमेंट यू विल बी कंसिडर एज व्हाट, at that moment you will be considered as illiterate। फिर आता है बेटा लेक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। आपके पास पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी बट एट वाज नॉट पर्टिकुलरली कि दैट वाज ऑन द अपग्रेडेड लेवल। आज भी आप देखो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत कैसी है, आज भी अगर देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत कैसी है, वी आर नॉट हैविंग सफिशिएंट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो अदर नेशंस अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। एल इज लो पॉपुलेशन ग्रोथ। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों कम हो रही थी? बिकॉज यहाँ पे डेथ रेट्स ज्यादा थे। आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नाउ फर्स्ट रीजन जो यहाँ पे पॉवर्टी का दिया हुआ है, देयर वाज नो रिलायबल डाटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। मैं किसी पे रिलाई नहीं कर सकता, बट
Extensive poverty prevailed in India during the colonial period. The overall standard of living of common people in India was very low. मतलब पॉवर्टी थी, आप मानो कि वहां पे कितने पर्टिकुलरली पर्सन्स वर नॉट एबल टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस, सो दे वर कंसीडर एज बिलो पॉवर्टी लाइन. अभी अपन ने बिलो पॉवर्टी लाइन वी विल बी स्टडिंग, हमने ऑलरेडी मेरे वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं पॉवर्टी चैप्टर पे. आप पॉवर्टी चैप्टर पे देख सकते हो कि हम कैसे पॉवर्टी लाइन निकालते हैं. उस टाइम के इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारे पर्टिकुलरली वे दिए थे दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट दी पॉवर्टी लाइन. जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग बताया गया था, उसके अलावा और अदर इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की, बट पॉवर्टी वहां पे नहीं निकल पाई. बट ऐसा कहा गया है कि एट दैट मोमेंट देयर वाज एक्सटेंसिव पॉवर्टी एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज इलिटरेसी. व्हाट इज इलिटरेसी मींस? लिटरेसी रेट was as low as which reflect the social and economic backwardness. अबे आप खुद सोचो यार, अगर आपकी पॉपुलेशन एक लैंग्वेज बोल के और लिख नहीं सकती, तो वो उस पॉपुलेशन को कैसे कोई डेवलप करेगा, कैसे उसे एजुकेशन स्ट्रीम पे ले जाएगा? एवरेज लिटरेसी रेट, इट वाज जस्ट अ फैक्ट, इट इज गिवन 16%. मतलब मान के चलो अगर 100 में से सिर्फ ऐसे 16 लोग ही थे जिन्हों को एक लैंग्वेज लिखना आती, मीन्स दोज हु आर एबल टू राइट एंड रीड दैट वन लैंग्वेज, मे बी एनी लैंग्वेज, पर उसे वो राइट और रीड करना आनी चाहिए. That is the case of literacy. Hindi is most of the common language. Now, coming to women literacy rate, और कम था क्योंकि they were not allowed to go to the schools. They were not allowed to go out of the houses for the working culture. So that it was that still low. That was 7%, 16% तो overall था. 7% was women literacy rate. School वहाँ पे functioning पे नहीं चल रहे, and that's why we were having great illiteracy. Lack of public health facilities. First, public health facilities were either unavailable, या तो अवेलेबल होती थी तो वो इनएडुकेट होती थी. पहली चीज तो अवेलेबल नहीं. आज अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे जाओगे तो वहां पे सिर्फ बीपी और अदर प्रेशर्स के अलावा, बीपी और शुगर की गोली के अलावा और कोई गोली नहीं मिलेगी. ओके, नॉर्मली द particularly scenario of primary healthcare centers is just now in India is still. तो आप सोचो एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या होता होगा, वहां पे लोग कैसे अपना चीजें मैनेज करते होंगे, हाउ दे वुड हैव बीन मैनेजिंग देयर पर्टिकुलरली हेल्थ कंसर्न्स, हेल्थ इश्यूज. तो यहाँ पे उस टाइम पे पहली चीज तो अवेलेबल नहीं था, और अगर अवेलेबल होता था तो वो इनएडुकेट हुआ करता था. ओके, दैट इज द लेक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज. नेक्स्ट इज रिजल्ट. क्या है उसका? उसका क्या रिजल्ट आया कि आपके पास वाटर एंड एयरबोर्न डिसीजेस वर वाइड स्प्रेड एंड पीपल वर डाइंग ड्यू टू दिस. अब देखो बेटा, डिसीज कम्युनिकेबल बन जाता है जब वो वाटर और एयर के थ्रू पास ऑन हो रहा है. Communicable disease are very much particularly threatening to the persons when these disease can be communicable with the air and water. So अगर एयर वाटर के थ्रू ये चीजें हो रही हैं, so they were creating many casualties at that time. वहाँ पे डेथ रेट इंडिया का एकदम से बढ़ गया at the time of eve of independence. Mostly आपने देखा होगा in your movies also, we were facing the particularly famines. तो फेमाइंस पे अगर फेस कर रहे हैं, हमारे पास भुखमरी भी फेस हो रही है, तो अगर आपको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही, ऊपर से फूड अवेलेबल नहीं है, सो पर्सन की सिचुएशन वहाँ पे कैसे बनेगी? द पर्सन सिचुएशन विल बी दैट दे आर डाइंग ड्यू टू द पर्टिकुलर अनएडुकेट हेल्थ फैसिलिटीज. फिर हम बात करते हैं कि लेक ऑफ हेल्थ केयर, दैट वाज लो पॉपुलेशन ग्रोथ. क्यों लो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ? क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी. एयरबोर्न डिसीजेस, वाटरबोर्न डिसीजेस वर वेरी कॉमन. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? कि वहां पे एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत कम थी, दैट वाज 44 years. मतलब अगर आपने 40 प्लस झेल लिया, मतलब उस जमाने में, मींस यू आर वेरी मच अप टू डेट, यू आर हैविंग गुड हेल्थ फैसिलिटीज, यू आर हैविंग गुड food available with you, you have good nutrition. So here life expectancy was very much low, which shows कि आपकी एक्सपेक्टेंसी कम हो रही, बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज ही नहीं है ना, यू आर नॉट हैविंग द प्रॉपर हेल्थ. तब तक तो डिसीजेस क्योरेबल भी नहीं थे. ट्यूबरक्लोसिस ले लो, टीबी ले लो, एंड नाउ कमिंग टू दी बीपी, शुगर्स, तो दीज पर एट दैट मोमेंट उनके कोई क्योरेबल डिसीजेस नहीं थे. नाउ वी आर हैविंग अ क्योर ऑफ कैंसर इवन, but at that moment we don't have. Infant mortality rate, IMR,
IMR का था 218। IMR मीन्स व्हाट? एक infant, मतलब infant is particular baby which has not completed his 1 year of life. He is getting died by because of malnutrition. उसे proper nutritious diet नहीं मिल रही है, proper food intake नहीं मिल रहा है. That's why because of malnutrition or because of unavailable of good health facilities, that particular infant is dying. Now, definition of infant mortality rate यहाँ पे मैंने note पे mention करी है बेटा. It is the number of death per 1000 live birth of children under 1 year of age. अब ये बहुत बार कभी कभार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय आईएमआर? आईएमआर का फुल फॉर्म क्या है? आईएमआर इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे आपको क्लियरली स्पेसिफाई रहेगा. इट इज द डेथ ऑफ पर नंबर ऑफ इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ इन द एज ऑफ 1 ईयर. इन्फेंट तब तक कंसिडर करते हैं तब तक बच्चा 1 ईयर तक नहीं आता, उसके बाद इज नॉट कंसिडर एज इन्फेंट. देन समराइजिंग दी डाटा, अगर आपको देखा जाए तो समराइजेशन कर रहे थे. दिस इज द लास्ट स्लाइड. 16% वाज लिटरेसी रेट एट दैट मोमेंट. आज जाके 74% है. दिस इज द डाटा ऑफ 2010-11 सेंसस. हो सकता है कि आज डाटा पे फैक्ट्स अभी चेंज हो जाएंगे. फीमेल लिटरेसी वाज 7% बट नाउ इट इज 48. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भैया 218 से किस पे आ गया? 40 पर 1000 पे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जहाँ 44 ईयर्स की थी, अब 68. अब बोलोगे सर ये आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि इस पे बेटा 1 मार्क के एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं, मोस्टली आपके ये वाले डाटा पे जो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन है. और एनसीईआरटी तो आपके लिए बाइबल है भैया अभी एग्जाम टाइम में. तो इसको रोज सुबह शाम पढ़ो. ऐसे जैसे अपन पाठ पढ़ते हैं वैसे ही एनसीईआरटी को रीड करो. Try to read the NCERT as much as you can for these facts and figures. So, thank you students for listening today's lecture of Indian economics. Do subscribe my channel. Subscribe किए बिना वीडियो को एंड मत करना. Subscribe करो. I'm waiting. And do share the video with your friends so that they can also learn something for their board examination. And do hit the like button if you like the video. Thank you students for listening today's session. Have a good day.